Good morning, students. Good morning to all. We are back with our another online lecture, and yes, we have started our new chapter. And today we are going to discuss about the next point, that is proteolytic activation of zymogens. Okay. Now, proteolytic. If you will see the word proteolytic. Protein and lytic means lysis, to cleave. Okay, we have to cleave the protein. That is the proteolysis. Why we have to cleave the protein? If we will cleave the protein, ultimately it's going to affect the reaction, and we are regulating the reactions, right? So what is the reason behind this proteolytic? We will understand this when we see this point. Okay, means you will understand that why the name is given proteolytic. Proteolytic means cleavage of protein. Ultimately, it is the cleavage of amino acid, because proteins are made up of amino acids. Okay. Activation of zymogens. Now here the most important word is zymogen. What are zymogen? Before that, you might have heard the word zymogen. Okay, if you might have not heard, you are going to see in this chapter, in this point, what are zymogens. Okay, let's start then. Zymogens, these are inactive precursor of the enzyme. Okay, means what? Some cells are there, like pancreas. Here I have shown the example of pancreas, so we will discuss about the pancreas. तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि वो इनएक्टिव एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं, या फिर इनएक्टिव एंजाइम को ही बोला जाता है प्रीकर्सर. ओके, मतलब इनएक्टिव एंजाइम का बाद में कन्वर्जन एक्टिव एंजाइम में होने ही वाला है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू फंक्शन. Okay, to function, to perform the proper functioning of this cell, or to perform the proper functioning of the metabolic pathway, it is necessary to become that enzyme active. लेकिन कुछ केसेस में सेल्स इनएक्टिव एंजाइम सिंथेसाइज करती है अपने बेनिफिट के लिए, वो भी हम देखेंगे कि कैसे. Okay, so now we will go step by step. The first step is to understand that what are zymogens. So zymogens के प्रीकर्सर होते हैं. प्रीकर्सर मतलब इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम जो सेल सिंथेसाइज करते हैं. ठीक है, some proteins are synthesized as inactive precursor called as the zymogen or proenzyme. तो आपको बस इतना याद रखना है कि zymogen मतलब these are the proenzyme, these are the inactive enzymes जो सेल सिंथेसाइज करती है. Okay, that are known as the zymogens. Now example is there, enzyme secreted by many parts, like enzyme means in the sense inactive enzyme, that is known as the zymogens, या फिर आप उसको बोलेंगे प्रोएंजाइम, या फिर आप उसको कहेंगे प्रीकर्सर. प्रीकर्सर क्या होता है? प्रीकर्सर दिस आर द पॉलीपेप्टाइड चेन्स. ओके, प्रीकर्सर को अगर प्रीकर्सर मतलब भी इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम का, तो इनएक्टिव फॉर्म मतलब दिस आर मेड अप ऑफ द polypeptide chain, that is the precursor. Now we will see the example दिखाया है pancreas. Now pancreas is the organ. Okay, so pancreas it secrete the proenzyme, or it secrete the inactive enzyme like trypsin and chymotrypsin. Now instead of writing here chymotrypsin, let me write chymotrypsinogen. जैसे कि मैंने आपको बताया कि zymogen क्या है, ये इनएक्टिव एंजाइम्स है. ओके, या फिर प्रोएंजाइम्स है. तो पैंक्रियास क्या सीक्रेट करती है? zymogen सीक्रेट करती है, मतलब प्रीकर्सर सीक्रेट करती है, मतलब प्रोएंजाइम सीक्रेट करती है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम सीक्रेट करती है. तो वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम कौन सा है? chymotrypsinogen. एग्जांपल आई हैव शोन trypsin and chymotrypsinogen. ओके, ये chymotrypsin है, आप फॉरगेट अबाउट chymotrypsin. अभी के लिए, फिलहाल के लिए आप chymotrypsin के बारे में भूल जाओ. क्यों? क्योंकि chymotrypsin ये एक्टिव फॉर्म है. किसका एक्टिव फॉर्म है? chymotrypsinogen का. See, don't be confused. It's very simple. Pancreas एग्जांपल मैंने दो दिए, trypsin और chymotrypsin. अभी हम जो डिटेल में देखने वाले हैं वो देखने वाले
बारे में, ठीक है। तो इसीलिए हम अभी फिलहाल सिर्फ काइमोट्रिप्सिनोजेन के बारे में ही बात करेंगे, बिकॉज यू हैव टू, आपको समझने के लिए एक एग्जांपल काफी है। अभी काइमोट्रिप्सिनोजेन पैनक्रियास सीक्रेट करती है या फिर पैनक्रियास सिंथेसाइज करती है, इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज करती है, तो इनएक्टिव फॉर्म है काइमोट्रिप्सिनोजेन। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप काइमोट्रिप्सिन लिखते हैं तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा इनएक्टिव फॉर्म, अगर आप सिर्फ काइमोट्रिप्सिनोजेन लिखते हैं तो इट इंडिकेट्स दैट इट इज द इनएक्टिव फॉर्म। So further we have to convert this chymotrypsinogen into active form, that is chymotrypsin, ठीक है। आपको क्या करना है, काइमोट्रिप्सिनोजेन जो इनएक्टिव फॉर्म है उसका कन्वर्जन आपको एक्टिव फॉर्म में करना है, वो है काइमोट्रिप्सिन। तो कैसे करेंगे, दिस इज द मैकेनिज्म, ओके। सो अभी ये इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में होगा, तो ये इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में कब होगा, when it reaches its destination or away from cell it becomes active। See now question arises कि उसने तो एक्टिव बनना ही है, बराबर, वो जो इनएक्टिव एंजाइम है उसको एक्टिव बनना ही है, तो सेल पहले ही एक्टिव एंजाइम क्यों नहीं सिंथेसाइज करती, बाद में क्यों वो इनएक्टिव एक्टिव हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि क्वेश्चन ऐसा आता है मन में कि why the cell synthesizes inactive enzyme, what is the reason behind that ये cell inactive enzyme synthesize करती है। तो the reason behind this is very simple, the reason is like that, see ये जो काइमोट्रिप्सिन जो एक्टिव एंजाइम है, ओके, काइमोट्रिप्सिन जो एक्टिव एंजाइम है, इट शोज द प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी दिखाती है वो, प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी, मींस व्हाट, लाइसिस ऑफ प्रोटीन, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, दैट इज द वी कैन से अभी काइमोट्रिप्सिन एक्टिव एंजाइम है, ये एक्टिव एंजाइम क्या दिखाता है, प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी दिखाता है, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड चेन, जो अल्टीमेटली अफेक्ट करेगा पैनक्रियास के फंक्शन को या फिर इस ऑर्गन या फिर सेल को डैमेज करेगा, बिकॉज इट विल क्लीव ना, एक्टिव एंजाइम इज शोइंग प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी जो खुद सेल के लिए हानिकारक है, जो खुद सेल के लिए हार्मफुल है, बिकॉज cells, now this pancreas is the organs are made up of cell, so this proteolytic activity it will affect this cell, as it affects the cell it is going to affect the organ, as it affects the organ it is going to affect the metabolic regulation, as it affects the metabolic regulation the complete cycle will get disturbed। तो इतना सब होता है, मतलब ये सेल के खुद के फायदे के लिए, ओके, to benefit the cells, to benefit the cell, this pancreas, this organ synthesize the inactive precursor known as the zymogen, ठीक है। वो एक्टिव डायरेक्टली एक्टिव एंजाइम क्यों नहीं प्रोड्यूस करता, क्योंकि देखो वो प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी दिखा रहा है, जो एक्टिव एंजाइम है वो प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी दिखा रहा है, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन, ओके, तो ये खुद के ही सेल को अफेक्ट करेगा, इसीलिए टू प्रिवेंट फ्रॉम द प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, टू प्रिवेंट फ्रॉम द प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी, दिस ऑर्गन synthesize the inactive precursor known as the zymogen। So that is the simple reason behind the synthesis of the zymogen or behind the synthesis of the inactive form। तो वो एक्टिव कब होता है, जब वो सेल से दूर जाता है, सिक्रेटरी सेल से, मतलब पैनक्रियास सेल से जब वो दूर जाता है, उसकी डेस्टिनेशन प्लेस पे जाता है, तब वो एक्टिव बन जाता है, तब वो अपनी प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी दिखाता है, ओके, व्हेन इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन और व्हेन इट इज अवे फ्रॉम दैट ऑर्गन और व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द सेल, तब वो एक्टिव होता है, ठीक है। जब वो खुद पैनक्रियास में होता है इट इज इन द इनएक्टिव फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रोटियोलाइटिक एक्शन, ओके। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, ये एक्टिव कैसे होता है, इनएक्टिव का कन्वर्जन एक्टिव कैसे होता है, ओके, दैट इज द क्वेश्चन। सो दिस वी आर गोइंग टू सी इन द मैकेनिज्म। अब मैं आपको बता दूं, ये जो काइमोट्रिप्सिन है व्हिच इज द इनएक्टिव फॉर्म और यू कैन से काइमोट्रिप्सिनोजेन जो है एक्टिव फॉर्म, इसका यूज क्या है, व्हाई आवर बॉडी सिंथेसाइजेस, व्हाई आवर दिस ऑर्गन सिंथेसाइजेस दिस इनएक्टिव प्रीकर्सर एंड व्हाई दिस फर्दर कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म। द रीजन बिहाइंड दिस इज, द आंसर बिहाइंड दिस इज वेरी सिंपल, दैट इट इज यूज्ड फॉर द, इट इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम, बस इतना याद रखिए, ये यूजफुल है डाइजेशन के लिए, ओके, इट हेल्प्स टू रेगुलेट द डाइजेशन और इट हेल्प्स टू कैरी आउट द प्रॉपर डाइजेशन,
ये काइमोट्रिप्सिन प्रीकर्सर, ओके, या फिर एक्टिव फॉर्म काइमोट्रिप्सिनोजेन। Getting my point? So that is the application of this chymotrypsin or chymotrypsinogen, which is the active form. Now let's see. Keep in mind that chymotrypsinogen it is the inactive form and chymotrypsin it is the active form. Chymotrypsinogen ये inactive form pancreas में synthesize होता है, बाद में when it reaches to its destination place, like अब digestion के लिए help करता है, तो एक्टिव फॉर्म कहाँ इसका कन्वर्ट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज देयर इट हेल्प्स इन द डाइजेशन। लेट्स सी हाउ दिस इनएक्टिव इज कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म, मींस हाउ काइमोट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू काइमोट्रिप्सिन। नाउ यहां पर आप डायरेक्ट काइमोट्रिप्सिनोजेन ही लिख सकते हैं। सॉरी, नाउ सी chymotrypsinogen. Now we are seeing exact mechanism of how inactive is converted into the active form. Now chymotrypsinogen or chymotrypsin which is inactive zymogen, अब ये इसका मैंने क्या दिखाया है, सिंपल स्ट्रक्चर दिखाया है। ओके, इट इज द सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन और सिंपल अमाइनो एसिड चेन ऑफ 245 अमाइनो एसिड रेसिड्यू। कितने हैं? 1 से लेकर तो 245 अमाइनो एसिड रेसिड्यू है। ये स्ट्रक्चर है इनएक्टिव zymogen का। कौन सा इनएक्टिव zymogen? काइमोट्रिप्सिनोजेन। डोंट बी कंफ्यूज्ड, इट्स वेरी सिंपल। ओके, 1 to 245 अमाइनो एसिड रेसिड्यू है। अभी ये इनएक्टिव फॉर्म है, हमें इसको कन्वर्ट करना है एक्टिव फॉर्म में। तो जो मैंने पिंक कलर के मार्किंग से दिखाया है दैट इज 40 अमाइनो एसिड रेसिड्यू एंड 50 अमाइनो एसिड रेसिड्यू प्लस 147 अमाइनो एसिड रेसिड्यू and 148 amino acid। ये जो मैंने पिंक कलर के दिखाए हैं इट इज द जंक सीक्वेंस, जंक अमाइनो एसिड सीक्वेंस। नाउ व्हाट आर जंक अमाइनो एसिड सीक्वेंस? व्हाई वी हैव टू रिमूव दिस जंक अमाइनो एसिड सीक्वेंस? इट इज वेरी सिंपल। सी, ये जो एंजाइम है काइमोट्रिप्सिनोजेन या फिर ये जो zymogen है, आप इसको zymogen ही बोलेंगे, ये जो zymogen है ये टर्शियरी स्ट्रक्चर में है। Okay, it is not in the primary structure. It is in the tertiary structure, which consists of 3 polypeptide chain. Okay, अब ये tertiary structure में है तो ये straight तो रहेगा नहीं, ये linear तो रहेगा नहीं. It has to be folded. Getting my point? उसका function carry out करने के लिए उसको folding structure में रहना बहुत जरूरी है, so that it can perform the its proper functioning. But due to this junk sequence, but due to the presence of this junk amino sequence, it is unable to fold. ये fold नहीं हो सकता. So it is important to remove this junk amino acid sequence so that it can be come into the tertiary structure. It can be folded so that it can perform its function. यही इसका point है. हमें junk amino acid sequence निकालना है क्योंकि जब हम junk amino acid sequence निकालेंगे तब जाकर हम ये जो लीनियर पेप्टाइड चेन है उसको हम फोल्ड कर पाएंगे, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ और इट इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन्स के होते हैं दे आर फोल्डेबल स्ट्रक्चर। व्हाई दे आर फोल्डेबल स्ट्रक्चर? टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। सो इसका फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, मतलब इसको इनएक्टिव में एक्टिव कन्वर्ट करने के लिए, इट इज नेसेसरी टू रिमूव द जंक सीक्वेंस, इट इज नेसेसरी टू फोल्ड दिस प्रोटीन और इट्स नेसेसरी टू फोल्ड द amino acid. So we have to remove this junk amino acid sequence. कौन से amino acid रेसिड्यू प्रेजेंट है? 14 नंबर पे प्रेजेंट है सेरिन, 15 नंबर पे प्रेजेंट है आर्जिनाइन, 147 नंबर पे प्रेजेंट है थ्रियोनिन, 148 नंबर पे प्रेजेंट है आर्सेनिक। ओके, दिस आर दी अमाइनो एसिड। नाउ इनको निकालने के लिए, मतलब इनका क्लीवेज करने के लिए, प्रोटियोलाइसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? We have to cleave this part, junk sequence. कैसे cleave करेंगे? It is cleaved by the trypsin. Okay, trypsin का function ही है cleavage. Okay, so with the help of this trypsin, this junk sequence has been cleaved at 15 position and 147 and 148 position has been cleaved. Okay, अब cleavage के बाद कुछ ऐसी action होगी. Okay, cleavage at 15 position अभी हमने ओके लेट मी टेल फर्स्ट ये सीक्वेंस क्लियर की गई है एट 15 पोजीशन क्लियर किया गया है, बाद में हम दो निकालेंगे, पहले 15 पोजीशन में क्लीवेज किया गया है। ओके, सो सी दिस पार्ट इज बीन सेपरेटेड
and here this complete part is been separated. आपको समझ रहा है पहले क्या किया है, पहले ये दोनों चेन सेपरेट की गई है. ओके, दिस टू चेन हैव बीन सेपरेटेड. वी हैव टू रिमूव दिस जंक सीक्वेंस. ये दोनों जंक सीक्वेंस हमें निकालना है, पर ये दोनों जंक सीक्वेंस निकालने से पहले ये दोनों चेन सेपरेट की गई है. सो द कटेड पार्ट इज फ्रॉम द 15th पार्ट. तो ये पार्ट कट हो चुका है और ये पार्ट एक अलग हो चुका है. ओके, तो यहाँ पर ये 13 पोजीशन और 16 पोजीशन, यहाँ पर कौन सी पोजीशन है, 16 पोजीशन. ओके, तो 13 और 16 पोजीशन इसको होल्ड पे रखा जाता है. ओके, दे आर होल्ड, दे आर नॉट फ्लैंक, दे आर बीइंग होल्ड. सो दिस आर होल्ड बाय द डाइसल्फाइड लिंकेज. ओके, इनको जो 13 और 16 पोजीशन रखी है वो होल्ड की गई, इट इज होल्ड बाय द डाइसल्फाइड लिंकेज. नाउ सी हियर व्हाट हैपेंस, द नेक्स्ट step, self digestion. Self digestion is there at this position 14, 15, 47 and 48 by the chymotrypsin pi. Let me write. Okay, जैसे यहाँ ट्रिप्सिन, पहले स्टेप पे ट्रिप्सिन से क्लीवेज होता है, दूसरी स्टेप में काइमो, दिस आर दी क्लीनिंग एजेंट्स. ओके, सो ट्रिप्सिन एंड सेकंड chymotrypsin pi, सेकंड chymotrypsin pi से क्लीवेज होता है. दिस टू पोजीशंस 114, 15 and 147, 148 पोजीशन इज बीन सेपरेटेड. और फाइनली हमें क्या मिलता है, एक जो हमें एक्टिव फॉर्म ऑफ द काइमोट्रिप्सिनोजेन है, यानी कि काइमोट्रिप्सिन वो मिलता है, व्हिच इज 1 to 13 पोजीशन. एंड हियर 16 to we can say 146 पोजीशन, राइट, 146 आप इसे कहेंगे. और यहाँ पर 149 to 245 पोजीशन. तो ये हमें सेपरेट एक्टिव काइमोट्रिप्सिन मिल चुका है. ओके, व्हिच इज द एक्टिव एंजाइम. हमें सिर्फ जंप सीक्वेंस निकालनी थी सो दैट इट कैन बी फोल्डेड. ओके, एंड बाद में ये रीजॉइन किया जाता है बाय द एंजाइम, सर्टेन एंजाइम. सो दिस इज द वेरी सिंपल मैकेनिज्म बिहाइंड, और यू कैन से दिस इज वेरी सिंपल मैकेनिज्म हाउ दिस inactive chymotrypsinogen is converted into active chymotrypsin. Getting my point? So that is the just point that I have to tell you. It is the digestive enzyme helps in the digestion. तो ये बाद में इसका एक्टिव फॉर्म chymotrypsin ये डाइजेशन में हेल्प करेगा. एक बार मैं आपको क्विकली बता दूं कि ये मैकेनिज्म कैसे है. ध्यान दीजिए, chymotrypsin या फिर आप कहेंगे chymotrypsinogen जो इनएक्टिव फॉर्म है इजाइमोजेन का, जिसने मतलब पैनक्रियास में जो सीक्रेट किया है, तो पैनक्रियास सीक्रेट इनएक्टिव फॉर्म नोन एज द काइमोट्रिप्सिनोजेन, जो 1 से लेकर तो 245 एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू है. ठीक है, तो यहाँ पर जंक सीक्वेंस भी प्रेजेंट, इट इज नेसेसरी टू रिमूव द जंक सीक्वेंस. दैट जंक सीक्वेंस आर बीन रिमूव्ड बाय द ट्रिप्सिन एंजाइम. ओके, सो ट्रिप्सिन क्या करेगा, जंक सीक्वेंस निकाल देगा. 14, 15, 7, 140. पहले ये दो चेन सेपरेट होगी, ये दो चेन सेपरेट होने के बाद जंक सीक्वेंस निकाली जाएगी, और जंक सीक्वेंस निकालने के बाद हमें फाइनली एक्टिव काइमोट्रिप्सिन मिलेगा. ओके, सो दिस एक्टिव काइमोट्रिप्सिन इट हेल्प्स इन द डाइजेशन. सो दैट इज ऑल अबाउट प्रोटियोलाइटिक एक्टिवेशन ऑफ द zymogen. It shows the proteolytic activity. हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा वो मैं आपको बता दूं. हमने इस लेक्चर में देखा कि zymogen क्या है. ओके, what are zymogen. फिर हमने एग्जांपल स्टडी किया अबाउट द chymotrypsin. This chymotrypsinogen which is in active form, how this chymotrypsinogen is converted into chymotrypsin, हमने ये देखा. Thirdly हमने रीजन देखा behind why pancreas secrete the inactive form. ओके, क्यों इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट किया जाता है, बिकॉज इट अफेक्ट्स, इसका हार्मफुल इफेक्ट इसी सेल पर होता है या इसी ऑर्गन पर होता है, इसीलिए हार्मफुल इफेक्ट होना. So this pancreas secrete inactive form and then further it is converted into the active form to carry out the certain function. Okay, so that is all about today's lecture. Thank you.